السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بستر پر طے کیا گیا کمبل ویسے ہی پڑا تھا. گھر میں کچن کے سامان کے لیے بنائی گئی لسٹ وہیں سرہانے تلے رکھی تھی. کمرے گھر اور ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھنے والی جمیلہ عزیر آج ایک خلیص انسان کی ہوس کا نشانہ بن گئی تھی. جمیلہ عزیر 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. جمیلہ کے علاوہ 4 بہنیں اور ایک بھائی تھا. بھائی سب سے چھوٹا تھا. جمیلہ کے والد صاحب ڈرائیور تھے اور کراچی سے واپس آتے ہوئے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو گئے تھے. والد صاحب کی موت کے بعد گھر میں افسوس کے لیے آنے والوں کو سادہ پانی کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہ تھا. جمیلہ کی ماں کو شوہر کی وفات سے زیادہ بچوں کی بھوک کی فکر تھی. لہٰذا وہ متعلقہ بس کمپنی میں گئی جہاں اس کا شوہر ملازمت کرتا تھا اور شوہر کی جگہ پر کوئی چھوٹی ملازمت مانگی مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کمپنی نے انکار کر دیا تو مجبوراً جمیلہ کو کمپنی میں کام کرنا پڑا اور انتظامیہ نے اسے بس ہوسٹس کا کام دے دیا. جمیلہ کی عادت تھی روز صبح سویرے کچن کا سامان دیکھ کر جاتی اور جو چیز ختم ہو چکی ہوتی یا ختم ہونے کے قریب ہوتی واپسی پر لیتی آتی اور مہینے کے شروع میں جب تنخواہ ملتی تو ایک ہی بار لسٹ بنا کر مہینے بھر کا راشن لے آتی جو کہ نصف ماہ بعد ہی کم پڑنے لگتا اور آج بھی اسے تنخواہ ملنے کی امید تھی. لہٰذا اس نے رات کو لسٹ بنائی جس میں کچن کے سامان کے علاوہ اس نے پہلی بار اپنی بہنوں کی پسندیدگی پوچھی اور ان کی خواہش کے حساب سے کسی کے لیے چوڑیاں، کسی کے لیے مہندی اور کسی کے لیے کیچر وغیرہ بھی لکھ لیے تھے. آخر میں بھائی کے لیے لائٹ والی گھڑی اور جوتے بھی لکھ لیے مگر وہ لسٹ بنا کر سرانے کے نیچے رکھی اور صبح عجلت میں نکلنے کی وجہ سے وہ گھر ہی بھول گئی. مقررہ وقت پر پہنچی اپنے فرائض سر انجام دینے لگی. جب تمام مسافر بیٹھ گئے تو بس میں سوار ہو کر وہ روانہ ہو گئی. راستے میں مسافروں کی ضروریات کو پورا کرتی گئی. ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اپنے کام میں غفلت نہ کرے تاکہ ایک تو بہن بھائیوں کو رزق حلال کھلا سکے اور دوسرا اس کی ملازمت قائم رہے کیونکہ اس اکلوتی لڑکی کے سر پر اس کا پورا گھر چل رہا تھا. مگر تقدیر کو آزمائش منظور تھی. کمپنی کا ایک سیکیورٹی گارڈ کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا. آج جب اس کو موقع ملا تو اس نے بس کے اندر ہی جمیلہ کو درندگی کا نشانہ بنا دیا. مزاحمت اور شور کے ڈر کی وجہ سے جمیلہ کا گلا دبا کر اس کے سر پر پستول کا دستہ بٹ مارتا رہا. یہاں تک تکلیف، اذیت، درد اور سانس کی تنگی سے ساتھ ساتھ درندگی سہتی ہوئی وہ بے ہوش ہو گئی. وہ ہوس پرست جب اپنی ہوس مٹا چکا تو اس نے اپنے ساتھی کو دعوت گناہ دی مگر اس کا ساتھی دل میں خوف خدا رکھنے والا تھا. جو ہی اس کو سیکیورٹی گارڈ کی اس گھٹیا حرکت کا پتہ چلا اس نے فوراً سے جمیلہ کو اسپتال پہنچایا، قانون کے ادارے کو اطلاع دی اور اپنی انتظامیہ کو بھی خبردار کر دیا. یوں وہ بدبخت جمیلہ کا مجرم گرفتار ہو گیا. مگر پاکستان کے مضبوط قانون کے مطابق مجھے پورا یقین ہے جمیلہ جیسی لاچار لڑکی کو مجبور کر کے جلد از جلد کیس کو ختم کر دیا جائے گا. مگر شاید جمیلہ کبھی نہیں بھول سکے گی کہ بہنوں کی چوڑیاں، کیچر اور بھائی کی لائٹ والی گھڑی خریدنے کی خواہش کے لیے گھر سے نکلنے والی لڑکی ایک وحشی درندے کی ہوس کا نشانہ بن گئی. جب اس کی والدہ کو اپنی بیٹی پر بیتے ظلم کا پتہ چلا تو بے اختیار پیسوں کی تلاش میں وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف دوڑی جہاں سے کچھ پیسوں کے علاوہ گھر کی ضروریات کے سامان کی یہ فہرست بھی مل گئی تھی اور فہرست دیکھتے ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا. وہ روتے روتے بیٹی کو پکارنے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ اگر لٹنا ہی تھا تو کاش تیری جگہ میں لٹ گئی ہوتی. ماں ہونے کے ناطے اسے بیٹی کی عزت لٹ جانے کا غم اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بیٹی پہلے ہی یتیم تھی. اب آبرو ریزی کا داغ ماتھے پر سجائے وہ کیسے زندگی جی سکے گی. اسپانیہ کے شہر بلباؤ میں مقیم ایک پاکستانی بزنس مین اپنی روداد سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ مجھے میری والدہ سے بہت محبت تھی. میں اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اولاد بھی والدین سے بہت محبت کرتی ہے. یقیناً اتنی ہی محبت جتنی کہ والدین اولاد سے کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے دنیا میں ہر محبت کو تشبیہ والدین کی محبت سے دی جاتی ہے. میری اس بات سے میری والدہ متفق تھی کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں مگر اس بات سے متفق نہیں تھی کہ اولاد والدین سے اتنی ہی محبت کر سکتی ہیں جتنی کہ والدین اولاد سے کرتے ہیں. خیر وقت گزرتا رہا. ایک دفعہ رات کے کھانے کے دوران میری والدہ کو اچانک سینے میں درد محسوس ہوا تو میری والدہ نے درد کے متعلق مجھے بتایا. اس وقت میں روٹی کا نوالا سالن میں ڈبو کر منہ کی طرف لے جا رہا تھا. میں نے وہ نوالا واپس رکھا، موبائل اٹھایا، اپنے دوست ڈاکٹر کو کال کی، گاڑی کی چابی اٹھائی، پیسے پکڑے اور والدہ کو لے کر اسپتال پہنچ گیا.
जहाँ मेरा दोस्त मेरा मुंतज़िर खड़ा था। अस्पताल पहुँचते ही मेरी वालिदा को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया और मुझे तसल्ली रखने का कहा गया। इस दौरान मेरे मोबाइल पर मेरे बिज़नेस पार्टनर की कॉल आ गई। मैंने उसको आज दिन में होने वाली तमाम सरगर्मियों से आगाह किया, आने वाले कल होने वाले काम के मुतालिक डिस्कस किया और फिर कॉल बंद करके अपने मैनेजर को कॉल लगाई। उसको कल के काम के मुतालिक समझाया। इसी दौरान मेरा दोस्त मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मुझे मेरी वालिदा की तबीयत में बेहतरी के मुतालिक बताया। मैं कुछ मुतमईन हो गया। अभी मेरा डॉक्टर दोस्त मुझसे मेरी वालिदा के मुतालिक डिस्कस कर ही रहा था कि मेरी बीवी की कॉल आ गई। मैंने उसको वालिदा की सेहत का बताया और साथ ही खाना गर्म करके रखने का कहा, क्योंकि हम अस्पताल से डिस्चार्ज होने की उम्मीद लगा चुके थे। और फिर मैं अपने दोस्त के साथ वालिदा साहब को मिलने अंदर वार्ड की तरफ चल दिया। जहाँ मेरी वालिदा दरवाजे पर नज़रें जमाए मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, मैंने जाकर उनकी कदम बोसी की और फिर पूछा कि आज पता चल गया औलाद वालिदैन से कितनी मोहब्बत करती है। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा मुस्कुराईं और मुझसे कहा कि मैंने कभी तेरी मोहब्बत पर शक नहीं किया, अलबत्ता आज भी अपनी बात पर ही कायम हूँ कि औलाद की तरफ से की जाने वाली मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बत के बराबर नहीं हो सकती। मेरी वालिदा की बात सुनकर मेरे डॉक्टर दोस्त को भी हमारी बात में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने हम माँ बेटे से वाक़या पूछा तो हमने उसको सारी बात सुना दी। और हमारी बहस सुनकर मेरे दोस्त ने मेरी वालिदा के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर एक वाक़या सुनाया कि मैंने तालीम मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट की मुलाज़मत इख्तियार कर ली। मेरी पहली पोस्टिंग सरगोदा के छोटे से शहर मियानी में हुई। एक दिन मेरे पास एक खातून अपना बेहोश बच्चा उठाए हुए पहुँची। मैंने बच्चा खातून के हाथ से लिया तो मेरी नज़र खातून पर पड़ी, जो ख़ुद भी शायद होश में नहीं लग रही थी। एक पैर में जूता था, एक पैर में नहीं था। दुपट्टा सर की बजाय गले में लटक रहा था और ज़मीन पर घसीट रहा था। मैंने बच्चा पकड़ते हुए बेहोशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मैं रोटी बना रही थी। बच्चा मेरे पास चारपाई पर लेटा था। मेरा ध्यान बच्चे की तरफ से गाफिल हुआ तो गिर गया। मैंने औरत को तसल्ली दी और बिठाकर बच्चे का इलाज करने लगा। बच्चा होश में आ गया तो उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। माँ ने लपक कर बच्चे को गोद में ले लिया। फिर 2-3 बार उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही तो बच्चा दोबारा मैंने पकड़ लिया और औरत को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की। इसी दौरान औरत शदीद तरीन अंदाज में कराहने लगी। मैंने महसूस किया कि औरत के चेहरे पर तशद्दुद के निशान थे, जैसे उस पर तशद्दुद किया गया हो। मैंने औरत से पूछा तो उसने बताया कि बच्चा चारपाई से गिर जाने की वजह से शौहर ने मारा पीटा। जो ही शौहर ने तशद्दुद के बाद छोड़ा तो वह बच्चा उठाकर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। मैंने मेडिकल अमले को फ़ौरन औरत के एक्सरे उतारने का कहा। कुछ टेस्ट किया तो पता चला कि औरत की अपनी 2 पसलियाँ और एक उंगली टूटी हुई है। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल कर लिया और उसके शौहर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। खातून ने शौहर के ख़िलाफ़ कानूनी चारा जोई से इनकार कर दिया। यूँ इलाज के बाद वो फारिग होकर अपने घर चली गई और मैंने कुछ अरसे बाद मौका मिलते ही यहाँ मुंतकिल हो गया। आप अंदाज़ा लगा लो कि जब तक बच्चा सेहतयाब होकर औरत की गोद में नहीं आ गया, उसे किसी चीज़ की होश नहीं थी कि सर पर दुपट्टा है या नहीं, पाँव में जूता है या नहीं, उसकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं या सलामत है। जबकि उसके बरक्स आज एक बेटा माँ को लेकर आया जिसने फ़ोन पर बिजनेस पार्टनर को सारे दिन की तफसीलात भी बताई हैं, आने वाले कल का काम भी डिस्कस किया है, मैनेजर को आने वाले कल के मुतालिक हिदायत भी दी हैं, बेगम को खाना गर्म रखने का भी कहा है। और इन दोनों वाक़यात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औलाद और वालिदैन की मोहब्बत में कितना फ़र्क है। बलूचिस्तान के शहर कोलू के इलाके में अब वो अपनी माँ के साथ मिलकर घास फूस की झोपड़ी बनाने के बाद उस पर प्लास्टिक शीट डाल रही थी। जब उसने माँ से सवाल किया था कि क्या वाकई ही एक दिन हमारा भी पक्का घर होगा जिसके लिए हर दूसरे या तीसरे महीने हमें घास फूस और लकड़ियाँ जमा नहीं करनी पड़ेंगी, माँ ने हसरत भरी एक खारिज की और अपनी बेटी की आंखों में देखा जब बहुत सारी उम्मीदों के दिए महज उसके सबक जवाब के इंतज़ार में जगमगा रहे थे। और माँ ने झूठ के सहारे ही सही मगर इन दियों को जगमगाता रहने दिया और कहा कि हाँ बेटा ज़रूर, बस कुछ अरसे की बात है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगी जिसका पक्का घर होगा। माँ की बात सुनकर 8-9 साल हल्के सब्ज़ रंग की आंखों वाली लड़की नायाब ज़हरा खुश होते हुए कहने लगी थी, माँ मेरी शादी इतने बड़े घर वाले से ना कर देना कि मुझसे घर संभाला ही ना जा, जैसे बड़े साईं मुराद बख्श मरी का घर है। बस छोटा सा घर हो और पक्का बना हो ताकि मुझे लकड़ियाँ और घास फूस जमा ना करनी पड़े। और साथ ही वो तेज़ से साथ चलाने लगी। इधर प्लास्ट शीट पूरी तरह से लपेट कर झोपड़ी को ढांपा। इधर स्याह बादलों ने आसमान को घेर लिया और शदीद बारिश शुरू हो गई। ज़्यादा बारिश की वजह से
नशेबी इलाकों में पानी की वादियाँ चलने लगी जिनमें बहते बहते एक कुतिया अपने 2 बच्चों के हमरा आई और नायाब ज़हरा की झोपड़ी के करीब किनारे से लगकर बच्चों के हमरा बाहर निकाल आई। ठंड की वजह से कुतिया के बच्चे ठिठुर रहे थे और वह गीले जिस्म की वजह से बच्चों को हरारत पहुंचाने में नाकाम हो रही थी। जब नायाब ज़हरा की नज़र उन पर पड़ गई, नायाब ज़हरा उठी और कुतिया को बच्चों समेत झोपड़ी में लाकर नरम और गर्म खुश्क घास पर रख दिया। यहाँ कुछ ही देर में बच्चे हरारत मिलने पर खुश्क हो गए और अपनी माँ के साथ खेलने लगे। बच्चों को माँ के साथ खेलता देखकर नायाब ज़हरा ने अपनी वालदा साहिबा को मुखातिब करते हुए कहा, माँ, मैं शादी के बाद भी लकड़ियाँ और घास फूस जमा करके झोपड़ी बनाया करूँगी ताकि अल्लाह ताला की मखलूक़ात ठंड और बारिश के वक्त इस झोपड़ी में पनाह ले सकें। नायाब ज़हरा की वालदा अपनी बेटी के नए ख्यालात सुनकर महज मुस्कुरा दी थी। कुतिया ने अपने 2 बच्चों के हमरा नायाब ज़हरा की झोपड़ी को ही अपना मस्कन बना लिया था, मगर नायाब ज़हरा की चढ़ती जवानी और निखरता हुस्न उसके लिए अज़ाब बन गया। वो अपने कबीले के वडेरे की नज़रों में आ गई थी। ना सिर्फ वडेरा बल्कि उसका बेटा भी नायाब ज़हरा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। पहले पहले उन्होंने मुख्तलिफ किस्म रात और आसाइश देकर उसका जिस्म खरीदना चाहा, मगर जब अपने इरादे में कामयाब ना हुए तो दोनों बाप बेटे ने अपने अपने गर्गों के ज़रिए इन यतीम मस्कीन बेसहारा औरतों की जगह ज़िंदगी अजीरन कर दी। यहाँ तक वह माँ बेटी अपनी झोपड़ी और सामान छोड़कर रातों रात वहाँ से फरार हो गए। रात के घटाटूप अंधेरे में बगैर जूतों के चलते हुए जब पैर छलनी हो गया और मज़ीद चलने की सकत बाकी न रही तो पक्के घरों के मकीनों के अमाल देखकर नायाब ज़हरा ने गिरते हुए माँ को मुखातिब करके कहा कि माँ, मैं कभी पक्के घरों की ख्वाहिश नहीं करूँगी, वहाँ इंसान नहीं शैतान बसते हैं। महलनुमा घरों में रहने वाले लोग मखलूक खुदा होते हैं, मगर उनके दिलों में खौफ खुदा नहीं होता। शायद इतनी बात करने के बाद वो गिरी और बेहोश हो गई। माँ के पास पानी की एक बूंद तक ना थी कि अपनी बेटी के चेहरे पर डालकर उसे होश में ला सकती, लिहाजा वो बेटी के ज़ख्मी पैरों को गोद में रखे बेटी के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। कई घंटों बाद जब नायाब ज़हरा को होश आ गया तो उसकी वालदा ने अपना दुपट्टा उतारकर अपनी बेटी के पाँव के तलियों में बांधा ताकि ज़ख्मों वाले पैर कुछ पत्थरों से बचे रहें और चलने के काबिल हो जाए, और बेटी को लेकर चल पड़ी। वो किसी दूसरे कबीले के करीब जाकर बसी और वहीं दोबारा झोपड़ी बना ली। मगर अब की झोंपड़ी बनाते हुए नायाब ज़हरा ने पक्के घर की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। यहाँ हर किसी से शनाख्त छुपा कर दोनों माँ बेटी जैसे तैसे गुजारा करने लगी, मगर वडेरे का बेटा नायाब ज़हरा को अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए ढूंढता हुआ यहाँ भी आ पहुँचा। उसने मुकामी वडेरे के बेटे से मिलकर नायाब ज़हरा की वालदा की गैर मौजूदगी में ना सिर्फ उसका जिनसी इस्तेहसाल किया, बल्कि अपनी और साथी की हवस पूरी हो जाने के बाद उसे कत्ल करके झोपड़ी समेत जला दिया गया। जब वो लोग अपनी हवस मिटाकर नायाब को कत्ल करने के बाद अपने जुर्म का सबूत मिटाने के लिए झोपड़ी को आग लगा रहे थे, उस वक्त दूर से नायाब की वालदा ने उनको देख लिया था, मगर वो आग लगाकर निकल गए थे। खुश्क घास फूस और लकड़ियों को आग लम्हों में जलाकर राख कर दिया था। जब तक नायाब ज़हरा की वालदा झोपड़ी तक पहुंची तब वहाँ फ़कत एक जला हुआ वजूद पड़ा था और भुने हुए गोश्त की बू आ रही थी। नायाब की वालदा ने लाख कोशिश की कि अपनी मुर्दा बेटी को इंसाफ दिला सके, मगर दरिंदों के इस झुरमुट में हर कोई हिरन को नोचने की कोशिश करता है, उसकी ढाल नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही नायाब की माँ को भी पंचायत, पुलिस और मुआशरे ने झूठा करार देते हुए फरेबी धोखाबाज समझ लिया और कहा कि उसकी बेटी अपनी गलती की वजह से जलकर मर गई और उस औरत की दौलत की हवस अब भी ख़त्म नहीं हुई, और ये अब मुर्दा बेटी की इज्जत नीलाम करके उन वडेरों से पैसे ऐंठना चाहती है। लोगों के ताने और नश्तर-नुमा अल्फाज सुनकर और जवान बेटी के बेआबरू होकर मारे जाने के दुख का बोझ दिलो दिमाग पर रखे पागल हो गई और इसी हालत में कब्र में जा पहुंची। अल्लाह हाफिज़।